Shalom, friends. Good evening. Good to be back with you all this week. सबको शांति मिले और आज की संध्या काल में फिर से एक बार हम सबको एक जगह आने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे लिए अच्छा है। To all the leaders, pastors, and those who are in ministry in Punjab and Amritsar, greetings in the name of Jesus. और जितने भी पास्टर्स हैं और पंजाब से रहने वाले जितने भी प्रभु के दास हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अभिवादन देता हूँ। I hope you all have been following us from the last 3 sessions where we studied the introduction, then we went through 2 times the story of the life of Abraham. और मुझे विश्वास है और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है पिछले 3 जो सेशन में हम सब लोगों ने एक साथ जो है अब्राहम के बारे में सीखा है, आने वाले समय में आपको आशीष का कारण होगा। And we've seen that by his life of faith, how Abraham got merit in the sight of God to acquire the promises and the covenants that God gave him. और जो है हम अब्राहम के जीवन से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो उसके जीवन में वो आशीषों को प्रदान किया है, उसके माध्यम से बहुतों को आशीष प्राप्त हुआ है। And we also seen that he being not a Jewish person, but God produced a Jewish soul inside of Abraham, wherein his descendants formed and then became the Jewish people. और हम ये भी देख सकते हैं कि अब्राहम उसके जो है वंशज से यहूदियों के माध्यम से जो है होता है और उसके जो वंशज लोग पाए जाते हैं वो लोग यहूदी थे। So everything that is Jewish, the Jewish nation, the Jewish people, even the Torah that God gave the Jewish people, the foundation is the faith of Abraham. और हम देख सकते हैं यहूदी लोगों को जो तोरह में हम देख सकते हैं कि जो अब्राहम जो नींव जो पाया जाता है वो यहूदियों के माध्यम से था जिसको अब्राहम को परमेश्वर ने दिया है। So the foundation of everything you read also in the Old Testament is because of the faith of Abraham. That's what I'm trying to stress to everybody today. अभी यहूदी लोगों के जीवन में जो भी आशीष परमेश्वर ने दिया था वो जो है हम देख सकते हैं केवल और केवल अब्राहम के विश्वास के माध्यम से आता है। Correct. So all descendants after Abraham are born in the merit of Abraham, in what he has done in the sight of God. In that merit, they have been born into this world. और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या जोड़ा था, उस गुण के साथ जो है उसने इस धरती पर जन्म लिया है। Now 400 years from Abraham, we come to the story of Egypt. अब जो है अब्राहम से 400 वर्ष के बाद जो है हम मिस्र देश में आते हैं उसके कहानी के बारे में। And Egypt is a story of a birthing and a preparation and a producing of a special people unto God. और जो हम देख सकते हैं जो मिस्र देश पाया जाता है वो प्रभु के उनके लोगों के प्रति में जो है विशेष आशीष या फिर विशेष कार्यों को उनको सौंपा गया है। So God used Egypt as a womb of humanity to create this nation called Israel and bring them out for his purpose. और परमेश्वर ने जो है इज़राइल के लिए जो है मिस्र देश को इस प्रकार से वो जो गर्भ के समान जो है उसको इस्तेमाल किया है। So why did God not do this in the lifetime of Abraham or Isaac or in the lifetime of Jacob and his 12 sons? तो क्यों जो है परमेश्वर ने इसको इसहाक, याकूब और उसके जो 12 गोत्र पाए जाते थे उनको नहीं प्रदान किया? Because they were too few in number to be called a people or a nation. Sir, can you repeat it once more? I am not able to hear. Can you? Because they were too few in number to be called a people or a nation. क्योंकि वहां पर जो है कुछ लोग ही पाए जाते थे कि उसको जो है एक राष्ट्र या फिर लोगों का समूह कहा जाए। So God had to take them into Egypt
and make them multiply like literally like animals and grow as a huge number, as a huge people, and then bring them out as one nation. तो परमेश्वर को इस प्रकार से करना था कि उन लोगों को जो है या फिर उनके समूह को बड़ा कर देना था, उनको जो है और भी बहुतायत के उनको बढ़ा देना था। उसके बाद जो है उनको इस स्थान पर लाना था कि वो जो है मिस्र देश के समान जो है बड़ा हो जाए। But there is also another reason why. It's because God had to deal and purify the lives of Abraham, Yitzhak, and of Jacob also, so that they were able to produce a people that would be called Israel. अब यहाँ पर जो है इस प्रकार से देख सकते हैं, वहां पर उनको वो शुद्ध भी करना था, जिस प्रकार से अब्राहम, इसहाक और जो याकूब पाए जाते थे कि वो जो है इस्राएल का वो राष्ट्र कहलाए। So effectively, we say that by the time Abraham was 120 years old, he was too old as one person for God to create a nation from. He had already given him a child, Yitzhak. और हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जिस समय में जो है इसहाक के रूप में उसको जो एक बेटा प्रदान किया, उस समय में जो अब्राहम था वह जो है 120 वर्ष का, अर्थात वह जो है बूढ़ा हो चुका था। But Yitzhak now also had his own problems with God. Therefore, although being the promised son, the fruition of Israel was still not able to come into this world because Yitzhak also had to deal with his own rectification of his soul. अब याद रखें, जो इसहाक जो पाया जाता है, वो इसहाक को खुद से अपने प्राण को जो है या फिर अपने आत्मा को जो है सुधार करना चाहिए था। जब तक ये सुधार में ना आ जाए, तब तक जो है वो इस्राएल के राज्य में अपने आप को स्थापित ना कर पाएगा। Then it came to Jacob and Esau. Now, these two brothers, these two twin brothers, are the ones who would be able to produce two different nations in this world for two different purposes. अब याद रखें, जब हम एसाव के जीवन में आते हैं या फिर याकूब के जीवन में आते हैं, तो एसाव और याकूब को इस संसार पे जो है दो अलग राष्ट्र या फिर जो है दो पीढ़ियों को जो है उनको प्रस्तुति करना है। So, from the biblical point of view, I want to tell you right now that Jacob is the Jewish people, whereas Esau are the Christian people, is the Christian world. तो अब यहाँ पर जो है दो हम कारण देख सकते हैं। पहला याकूब और उसके साथ साथ एसाव, और ये दोनों जो है अलग मसीहत से होकर के चलते हैं। No, Jacob is the Jewish people and Esau are the Christian people. अब यहाँ पर जो जेकब था वो जो है यहूदी मत का था, और जो याकूब था वो जो है मसीहत Esau, का, Esau, एसाव। yeah. So these two brothers are actually one in the womb. They come out from one womb. So therefore, it is what Jacob has, Esau lacks. What Esau has, Jacob lacks. अब याद रखें, ये दोनों जो पाए जाते हैं वो लोग जो है एक ही गर्भ से जरूर आए हैं, लेकिन जो क्या एसाव के पास है वो जेकब के पास नहीं है, क्या जेकब के पास है वो एसाव के पास नहीं है। So in the end of times, the Jew and the Christian, the Gentile must come together to become one person again. और इसलिए जो है जो यहूदी लोग पाए जाते हैं और जो अन्य जाति लोग पाए जाते हैं, वो उन लोगों को जो है एक साथ आना चाहिए था, ताकि वो लोग जो है एक बन जाए। Now we see the life of Jacob. Jacob was a person that God rectified his soul to a great extent, so that God had to change his name from someone who is crooked to someone who's straight, which is the meaning of the word Israel, someone who's straight with God. अब याद रखें, अब हम जो है याकूब के जीवन में देखते हैं, तो अपने आप को उसको सुधार करना चाहिए था, और वो ऐसे राष्ट्र से आता है जहां पर किसी को बुराई करते थे, कोई गलत काम करते थे। Did you say what I said, Kishan?
No, I think he has not. He Ishan, missed are it. you hearing what I'm saying? 'Cause Yes, sir. I don't think you're saying what I'm saying. Yes, sir. I'm hearing. I'm saying what I said was that uh, Jacob Jacob had the rectification of Jacob's soul was when God had to change his name from Jacob, which means crooked, to Israel, which means someone who's straight with God. अब याद रखें, जो याकूब जो पाया जाता है उसको अपने प्राण का या फिर अपने आत्मा का उसका जो है सुधार करना चाहिए। याकूब का मतलब जो है क्रूकेड या फिर जो है जो बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, उसको जो है इज़राइल के नाम में परमेश्वर को अब जो है बदलना है। And the meaning of Israel is to be straight with God. अब याद रखें, जो इज़राइल का मतलब हो वो परमेश्वर के साथ एक साथ मिला हुआ है। Okay, so this is the story of the fathers of the Bible. Now, the अब ये 12 बाइबल के जो है उसके पिता की उसकी कहानी है। Now, when we jump to the book of Exodus, we read the story of Moses, who is the son of one of the tribes of Levi. और जब हम जो है निर्गमन की उसके किताब में जाते हैं तो वहां पर जो है मूसा के बारे में देखते हैं जो लेवी गोत्र से था। Now, it is almost 430 years after Abraham that Moses comes into importance, because now finally, when the children of Israel are lots and many, God has decided to take them out and make them into a people for himself. अब जो है हम देख सकते हैं 430 वर्ष बीत गए हैं अब्राहम के बाद में। अब ऐसा समय था कि परमेश्वर को जो है अपने लोगों को, जो लोग मिस्र देश में गुलाम थे, उन लोगों को उस देश से छुड़ा करके अब या फिर बंधुआई से उनको छुड़ा करके लाना था। So God takes these people out from Egypt, led by Moses and his brother Aaron, and he takes them 40 years in the wilderness, and God gives them all the instructions of the Old Testament called the Torah. अब मूसा के माध्यम से और उसके भाई हारून के माध्यम से इन लोगों को, जो लोग बंधुआई में फंसे हैं उस मिस्र के गुलाम में, उन लोगों को जो है एक जंगल के रास्ते से होकर के जाना था और 40 साल उस स्थान पर जो है वो लोग बिताते हैं। So the role of Moses was different from the role of Abraham. अब मूसा के जो भूमिका वहां पर पाया जाता है वो अब्राहम की भूमिका से अलग है। Okay. Then Moses brings the people to the point where they are about to enter into the land, and then he dies, and Joshua takes them into the land. अब मूसा को जो है उन लोगों को, जो लोग मिस्र देश में गुलाम थे अर्थात इजरायली लोगों को, उस स्थान पर ले जाना था कनान में, और उस स्थान पर इनको ले जाने से पहले मूसा जो है वहां पर जाने के बाद खत्म हो जाता है, और यहोशू जो है, जो इजरायली लोग पाए जाते हैं, उन लोगों को जो है उस स्थान पर लेकर के गया जहां पर मूसा को ले जाना था। Now, what happens was, in the book of Exodus, in chapter 19-20, we read that God himself descends on this mountain called Mount Sinai and speaks to the Jewish people. अब हम क्या देखते हैं बाइबल में, जब हम जो है 19 और 20 अध्याय को इस निर्गमन का पढ़ते हैं तो उस स्थान पर जो सिनाई पर्वत है, उस स्थान पर परमेश्वर उतर जाता है और जो है अपने लोगों से बात करता है। But what is God talking to them now, which he never done before with Abraham or anybody else? अब परमेश्वर जो है वहां पर क्या बात कर रहा है? ऐसी बात कर रहा है जिसको परमेश्वर ने कभी ना तो अब्राहम से ना तो किसी और से बात किया है। God is speaking his heart out to his people and telling them what he likes and what he does not like, and he wants them to do and what he wants them not to do, because he is forming a close relationship with the Jewish people. अब जो परमेश्वर जो पाया जाता है उस पर्वत में अपने हृदय को खोल करके उन लोगों से बात कर रहा है, उनसे वायदा कर रहा है उन लोगों के प्रति में जो यहूदी लोग पाए जाते हैं। It is like a husband and wife sitting down and discussing how they're going to
take forward their relationship in their lives. और उनकी बीच की बातें जो है, जो पति और पत्नी के बीच में एक साथ बैठ करके जैसे वो बात करते हैं, उसी प्रकार के रिश्ता के अनुसार जो है परमेश्वर भी इन लोगों से बातचीत कर रहा है। Because God says in the book of Jeremiah, He says, I have married you, O Israel. You are my wife. He calls Israel his wife. क्योंकि परमेश्वर जो है यिर्मयाह की किताब में इस प्रकार से बोलता है कि मैंने तुमसे विवाह कर लिया है। वो इस्राएल मतलब उसकी पत्नी, वो कहता है इस्राएल उसकी पत्नी। And a man and a woman will not open their lives out and their hearts out to anyone else in the world except for themselves. That means it's a very intimate conversation they're having with each other. अब यहाँ पर जो है इस प्रकार से कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे के प्रति में और भी उनके हृदय को खोल करके ना करे, परंतु जो है ये एक दूसरे के प्रति में ज्यादा रिश्ता रखे, या फिर एक दूसरे के प्रति में जो है ये लोग अपने आप को शामिल कर दे। It's an intimacy, I'm trying to tell you. निष्ठता है उनके बीच में, And this intimacy is between a husband and wife and between God and the Jewish people. Nobody else can interfere into this. और जिस प्रकार से जो घनिष्ठता एक पति पत्नी के बीच में रहती है, उसी प्रकार से परमेश्वर और यहूदी लोगों के बीच में जो है घनिष्ठता पाई जाती है। And I want you all to understand this very clearly, because going ahead, how the Gentiles are brought into this relationship, we will study at a later stage. और एक साथ जाने के बारे में जब देख सकते हैं तो कैसे वे दोनों एक साथ आते हैं, उनको जो है हम आने वाले समय में स्टडी करेंगे। Okay, so in Exodus chapter 20, God is speaking to the Jewish people from on top of a mountain. That mountain is called Mount Sinai or Mount Horeb. और जब हम जो है निर्गमन इसका 20 अध्याय में देख सकते हैं तो परमेश्वर जो है उस माउंट होरेब या फिर जो है सिनाई का जो पर्वत पाया जाता है उसमें अपने लोगों से बातचीत कर रहा है। And finally, when he is actually in this spiritual marriage ceremony, God is speaking to them the 10 words or the 10 commandments, and speaking his innermost desires and heart out to his people. अब हम देख सकते हैं कि उस स्थान पर जिस प्रकार से जो है एक परंपरा थी, परमेश्वर उस 10 बातों को अपने लोगों से बोल रहा है। उस स्थान पर वो अपने हृदय को खोल करके उन लोगों को 10 बातों को बोलता है। In the Hebrew context, it is not commandments. और इब्रानी भाषा में हम देखते हैं वो जो है आज्ञा नहीं लिखा है, Because the moment I call it as a commandment, I make it legalistic and I make it into a religion. और जब भी मैं उसको बोलूं आज्ञा है तो उसको मैं जो है धर्म से जोड़ देता हूं और उसको जो है न्याय से जोड़ देता हूं और वो जो है अलग बन जाता है, धार्मिक बन जाता है। I want you to understand it is a conversation between a husband and a wife, what they need to do in a deep relationship and intimacy. और मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग समझें। ये जो है एक पति और पत्नी के बीच की बात के बारे में बताता है कि वे जो है एक दूसरे के घनिष्ठता को समझे या फिर एक दूसरे के उस रिश्ते को समझे। So the idea is the closer you get to God, the more you have the chance of hurting God. अब यहाँ पर जो आइडिया जो पाया जाता है, जितना ज्यादा आप जो है उसके निकटता में जाते हैं उतना ज्यादा ही आप परमेश्वर को दुख दे रहे हैं। And the more you hurt God, the more he will throw you far away from him. और जितना ज्यादा आप परमेश्वर को दुख देते हैं तो उतना ज्यादा आप परमेश्वर से दूर होते हैं। So we are looking at a mountain in the book of Exodus, in chapter 20, where God is giving the 10 words, and these 10 words have become law and have become a kind of commandments and law over the centuries, because the people have to take these words and apply it to their lives. अब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है 10 उन बातों को उस माउंट सिनाई में अर्थात जो है उस पर्वतों पर परमेश्वर इन लोगों से कहता है उनके रिश्ता को बोलने के द्वारा, और उस 10 वचनों को ये लोग जो है अपने में धारण कर लेते हैं। So
At that point of time, something very interesting happened in the story of Mount Sinai. और उस जो है उस पर्वत पे सिनाई के पर्वत में जो है कुछ रुचिकर बात जो है घटना घटती है। In the middle of God speaking to the Jewish people, suddenly the people say, stop, in verse 18, and say, stop. We do not want to hear God speak to us, for we will die. अब 18 पद में हम विशेष करके देख सकते हैं कि परमेश्वर उस स्थान पर कहता है रुक जाओ नहीं तो फिर खत्म हो जाओगे। Why? Because we are scared of what we are experiencing. We do not want to experience God. परमेश्वर नहीं बोलता है, परमेश्वर बोल रहा है कि अगर नहीं, लोग बोल रहे हैं, परमेश्वर आप मत बोलो, नहीं, अगर हम परमेश्वर को सुनेंगे तो हम मर जाएंगे। Because the people are scared of what they're experiencing on the mountain. क्योंकि लोग जो है बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं कि क्या वे जो है उस पर्वत पर देखते हैं। So they tell Moses, you go to God, you speak to God, you take the commandments and you give it to us, and we will listen and we will do. और इसलिए जो है वो मूसा को कहते हैं कि आप हमारे जो है अभिहाप से जाएं और आप परमेश्वर से बोलें, आप प्रभु से बातें करें, आप जो हमें बोलना चाहते हैं उन बातों को परमेश्वर से बोलें करके मूसा से कहते हैं लोग। So effectively they are refusing for God to speak the commandments in their heart. अब जो है वो लोग जो पाए जाते हैं वो लोग सीधा तौर से हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो नियम या फिर कानून परमेश्वर ने उनको दिया है उसका वो तिरस्कार कर रहे हैं, सीधे तौर पे उसको मानना नहीं बोल रहे हैं। No, they are refusing God to speak the commandments in their heart. They want it written down in a book. वो अपने हृदय में परमेश्वर की उस आज्ञाओं का या फिर कानून को जो है सीधा सीधा इनकार कर रहे हैं कि परमेश्वर उनसे बात ना करे। And this is very, very significant because God wants to write his commandments in your heart. He doesn't want to write it in the book. और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर जो आज्ञा दे रहा है उसको उनके हृदय की पटियों में लिख देना चाहता है, ना कि पुस्तकों में। But God listens to them because he knows that the people are weak. There is a weakness in humanity. परंतु परमेश्वर समझता है, वो समझ रहा है कि ये जो मनुष्य लोग पाए जाते हैं या फिर जो लोग पाए जाते हैं उनके अंदर में कमजोरी है, इसलिए। And then he calls Moses up to the mountain and he gives Moses 2 stone tablets written with the commandments to give to the people for them to follow. और उसके बाद जो है उसने मूसा को उस सिनाई पर्वत पर बुलाया और उनको जो है 2 पत्थरों की तख्तियों में लिखा हुआ आज्ञा को जो है उसको प्रदान किया कि वो जो है लोगों के पास उसको लेकर के चला जाए। Now, while Moses is with God on the mountain, another mistake is committed by the people. और जब जो है ये मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था उस पर्वत पे, उस समय में लोग जो है और भी गलतियों को वहां पर दूसरा गलती करते हैं। They are waiting for Moses to come down and they're getting impatient because they said, this man who has brought us out of Egypt has disappeared and we are left alone in the desert without any hope. और लोग जो है इस प्रकार से बोल रहे हैं, उनका संयम जो है वो लोग खो देते हैं और वो कहते हैं कि ये व्यक्ति ने हमें जो है उस मिस्र देश से लाया है यहाँ पर हमें नष्ट होने के लिए, हमें खत्म हो जाने के लिए, और वो जो है अभी भी हमारे पास आ नहीं रहा है, कहाँ है करके सब लोग असंयमी हो जाते हैं। So what do? They catch Aaron and his nephew Hur and they literally powerfully stand upon them, about to kill him, saying, you will build us a god because we do not know what this man Moses has happened to him. और उसके बाद क्या होता है, जब वो जो है मूसा बात कर रहा था परमेश्वर से, तो लोग जो है उसके भाई हारून को पकड़ लेते हैं और हारून को पकड़ करके उनसे कहते हैं कि आपका
भाई जो है चला गया है, आप यहाँ पर हमें जो है नष्ट करने के लिए आए हैं क्या? सारे लोग जो है हारून के ऊपर में दोष लगाने लगे And they told Aaron to make a god for themselves. और वो सब लोग जो है हारून को इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे लिए एक देवता या फिर परमेश्वर बना दे। So Aaron, because his life is threatened, gives in to their demands, takes the gold from all of them, throws it into the fire, and a golden calf comes out, which they start worshipping. अब हारून का जीवन जो है बहुत ही ज्यादा भय से चल रहा था, उसके खुद के जीवन की पड़ी हुई थी, इसलिए जो है हारून ने सब लोगों से कहा कि अपना जो सोना है उसे उतार करके हमें दे दें और उसको जो है आग में डाल देता है और उनके लिए जो है एक काफ बना देता है। गाय बनाता है उनका, छोटा बछड़ा, सोना की बछड़ा बनाता है। And they worship this cow, and God now is seen from the mountain, and God becomes very angry. और उसके बाद जो है ये लोग जो बछड़ा पाया जाता है उसकी ये लोग आराधना करते हैं और ये परमेश्वर जो है इसे देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। This is the most serious mistake the Jewish people have made in the entire history. और यहूदी लोग जो है अपने जीवन में इतने बड़ी गंभीर जो है उस परेशानी को अपने जीवन में देख पाते हैं या फिर गलतियों को करते हैं। Because this mistake has led them to God completely changing his plan about the Jewish nation. और यही गलती जो है परमेश्वर इस प्रकार से बना दिया कि इन लोगों की उस पूरे राष्ट्र को जो है बदल दे। So God says now, Moses, I'm going to destroy this people and I will create a new people from you. Moses says, no, God, you will not do that. You will continue with these people. And Moses pleads on their behalf and saves them. और उसके बाद परमेश्वर जो है मूसा से इस प्रकार से कहता है कि मैं इन लोगों को पूरी रीति से नष्ट कर देने वाला हूँ, खत्म कर देने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग जो है मेरी आराधना, मेरी उपासना को छोड़ दिए हैं। लेकिन मूसा जो है परमेश्वर के पास जाकर के प्रार्थना करता है इन लोगों के तरफ से कि परमेश्वर उनको बचा ले और प्रभु उनको बचाता है। But God's plan has changed for their lives. God says, I will no more go with them. I will send my angel with them. And the entire responsibility of carrying the people lies on the shoulders of Moses. और उसके बाद जो है परमेश्वर का जो योजना था इन लोगों के प्रति में वो बदल जाता है और परमेश्वर इनके जीवन से हट जाता है और कहता है कि मैं अब इन लोगों के साथ में नहीं जाऊंगा, परंतु मैं अपने स्वर्ग दूतों को इनके साथ में भेजूंगा। अब जो है परमेश्वर उनके अगुवाई नहीं कर रहा, परंतु स्वर्ग दूत उनकी अगुवाई करेंगे और जितना भी जिम्मेदारी पाया जाता है सारी जिम्मेदारियों को परमेश्वर ने जो है मूसा के हाथ में या फिर जो अगुवा है उनके हाथों पे सौंप देता है। God tells Moses in chapter 35, he says, you brought these people out from Egypt. You will look after them. You will write the commandments. You will appoint people. You will lead them. It is your responsibility, Moses, because you have pleaded for them. This is what God has placed on Moses' shoulders for the Jewish nation. अब यहाँ पर जो है 35 अध्याय में हम विशेष करके देख सकते हैं परमेश्वर ने जो है मूसा से इस प्रकार से कहा कि मूसा तुमने उनको वहां से लाया है, तुम अब जो है उनके लिए उस आज्ञाओं को लिखोगे, तुम अब उनकी जिम्मेदारी को उठाओगे, तुम अब उनकी अगुवाई करोगे। इस प्रकार से सारी जिम्मेदारी को परमेश्वर ने जो है मूसा के हाथों पर या फिर उसके कंधों पर सौंप दिया। That is why from Mount Sinai till the time of the coming of our Lord Jesus, all responsibility for all of the Jewish nation was on the shoulders of Moses. और हम देख सकते हैं उस समय से लेकर के यीशु मसीह के आने तक इस धरती पर जो है जितना भी जिम्मेदारी यहूदी लोगों के प्रति में दिया गया था सारा जिम्मेदारी जो है मूसा के कंधों पर परमेश्वर ने समर्पित कर दिया है। But that was never God's plan. परंतु वो जो है परमेश्वर की योजना नहीं थी। In fact, if they had not sinned with the golden calf, then this plan would not have, Moses would not have been able to take this responsibility till today. और यदि जो है वो लोग जो है इस प्रकार का बछड़ा बनाते नहीं है तब तो जो है
जो जिम्मेदारी पाई जाती है वो मूसा के कंधों पर आज तक जो है नहीं पाई जाती होती। Now, to rectify that mistake and to change that mistake, it took 1500 years from Moses till the coming of our Lord Jesus to rectify that mistake which happened at Mount Sinai. और याद रखें जो गलती उस सिनाई पर्वत के समय में लोगों ने किया था, उस गलती को सुधारने के लिए या फिर उसको सुधारने के पूरी तरीके से सुधारने के लिए जो है अब जो है मूसा के हाथों पर उसके कंधों पर जो है आज्ञा दिया गया है। That rectification had to happen via Jesus coming 1500 years later. और 1500 साल पूर्व जो है क्यों यीशु मसीह आया, जब यीशु मसीह आया तब जो है उसका सुधार यीशु मसीह ने किया। So I want you to understand this very clearly. Now, if you open to the book of Matthew chapter 5, please open that book, the chapter for me. और जो है हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय में जब पढ़ते हैं And we will read verse 1. और पहला वचन को जो है हम जब पढ़ते हैं, Can you read it in Hindi? यस सर। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। We see that our Lord Jesus is climbed a mountain in Israel, and the people have come to him to learn from our Lord Jesus. और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो है उस पहाड़ पर चढ़ गया और जो लोग थे उसको देख करके उसके पीछे आ जाते हैं। In the book of Exodus, also we see God descending on a mountain called Mount Sinai, and in the New Testament we see Jesus also on a mountain speaking to the people. So we're talking about two mountains, the story of two mountains. अब यहाँ पर जो है जो सिनाई पर्वत पाया जाता था, उस सिनाई पर्वत में जो है परमेश्वर जो है उतरता था लोगों से बात करने के लिए और मूसा से बात करने के लिए। अब यहाँ पर जो है यीशु मसीह जो है पहाड़ पर चढ़ जाता है लोगों से बात करने के लिए। हम जो है दो पहाड़ों के बारे में जो है बाइबल में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। So we must try to understand what is the difference between these two mountains. और हम जो है इस दो जो पहाड़ पाए जाते हैं, इन दोनों पहाड़ों के बीच में क्या भिन्नता या फिर अलगताई पाई जाती है, इसको जो है स्पष्ट रूप से देखने जाएंगे। The only difference between these two mountains is the distance of 1500 years. और हम देख सकते हैं ये दो जो पहाड़ों के बीच में जो भिन्नता पाई जाती है, ये जो है 1500 साल जो है इसको ले गया। That is only the difference. Otherwise, everything is the same. यही केवल दो जो है भिन्नता पाई जाती है, परंतु उसके छोड़ करके जितना भी चीज पाया जाता है सब चीज जो है एक समान है। What God done on Mount Sinai, and the people sinned and the plan failed. Now God is not a burning fire on the mountain, but God is like a man on another mountain in Israel, talking to the people like और a क्या लोगों ने उस समय में अपराध किया, क्या गलती किया और उन्होंने जो है बछड़ा बनाया और परमेश्वर के वचन से दूर हो गए, परमेश्वर से बातें से दूर हो गए। अब उस गलतियों को परमेश्वर जो है एक और पहाड़ पर यीशु मसीह के रूप में जो है पहाड़ पर चढ़ करके जो है उस गलती को सुधार रहा है। So the commandments that God gave in the Old Testament, it is the same commandments Jesus is speaking to the people, but on a different mountain in Israel. Nothing has changed. अब यहाँ पर जो आज्ञा जो है उस समय में उस पहाड़ पर दिया गया था सिनाई के पर्वत पर परमेश्वर के माध्यम से, अब उसी आज्ञा को जो है एक नए रूप से, एक नया विचार से या फिर एक नयापन लेकर के जो है यीशु मसीह अब इस पहाड़ पर लोगों से बात करने जा रहा है। So Jesus is taking that same commandments and explaining it to the people as a man would talk to another man in याद रखें language. यीशु मसीह उसी आज्ञा को, जिस आज्ञा को सिनाई पर्वत पर दिया गया था, इस पर्वत पर लोगों से बात कर रहा है, एक मनुष्य के रूप में मनुष्यों से बात करना। It's very important to understand this. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए कि हम इसको अच्छे से समझें। And if you read chapters 5, 6 and 7 of Matthew, Jesus talked about mainly 4 to 5 of the commandments
that God gave at Mount Sinai, not all of them. अब हम यहाँ पर जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 2 और 3 पद में देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि केवल 3 या 4 जो है आज्ञाओं को यहाँ पर यीशु मसीह लोगों से बोल रहा है, ना कि सभी आज्ञाओं को जो माउंट सिनाई पर दिया गया था। And what are the 4 and 5 commandments Jesus is stressing upon and teaching them repeatedly out here? और क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो 4 और 5 जो आज्ञा पाई जाती है, जिसको यीशु मसीह बहुत ही जोर दे रहा है इस स्थान पर, Are the commandments that have got to do with relationships between one person with another person. और ये आज्ञा जो पाई जाती है, ये जो है उस रिश्तों के बारे में है कि परमेश्वर के साथ इनका रिश्ता कैसे हो। Out of the 10 commandments that God had given, the first 5 are for the relationship between man and God, and the other 5 are for the relationship between man and man. और याद रखें, जो 10 आज्ञा दिया गया है, पहला जो 5 आज्ञा पाई जाती है वो जो है परमेश्वर और लोगों के बीच के रिश्ता के बारे में बताता है, और जो और भी 5 जो आज्ञाएं पाई जाती हैं, ये 5 आज्ञाएं जो है अपने रिश्ते को मनुष्य से मनुष्य के रिश्तों के बीच में बात करती है। And Jesus is teaching them about the 5 that have got to do with the relationships between you and me, because this is about sin. अब यहाँ पर जो है यीशु मसीह जो 5 आज्ञाएं इस स्थान पर दे रहा है, वो जो है लोगों के बीच में बोल रहा है, आप और मेरे बीच में बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो है ये पाप को दर्शाता हो। All sin is the result of bad relationships with one another. याद रखें, जितना भी पाप हमारे जीवन में होता है, वो एक दूसरे से गलत रिश्ते होने के कारण। If your relationships are perfect with everybody, you are righteous in the sight of God. और यदि आपका संबंध जो है सब लोगों के साथ अच्छा होगा, तो परमेश्वर के सामने में जो है आप एक धर्मी गिने जाएंगे। Now, you cannot be perfect because you and me are human, but at least we will be considered righteous in the sight of God. आप जो है सिद्ध तो नहीं हो सकते, लेकिन फिलहाल के लिए जो है हम जो है परमेश्वर को जो धार्मिकता पाई जाती है, उस परमेश्वर के धार्मिकता को अपने जीवन में देखने पाएंगे। So I want you all to understand, when you all are reading the New Testament, you'll have to read the New Testament in the context and in the view of God and the Jewish people. और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप जो है नए नियम को पढ़ते हैं, तो नए नियम को परमेश्वर और यहूदी के बीच का जो संबंध पाया जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें या फिर उस परिच्छेद में पढ़ें। You and me, who are not Jewish people, our role comes much later on in the story in the book of Acts, not in the Gospels. आप और मैं जो यहूदी नहीं पाए जाते हैं, वो जो है बाद में आता है, जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं। उससे पहले जब हम जो है सुसमाचार की पत्रियों में जब पढ़ते हैं, तो सुसमाचार की किताबों में हम नहीं आते हैं। So everything that Jesus is saying specifically for the Jewish people, not for the Gentiles. और यीशु मसीह जो है जितने भी बातों को यहाँ पर बोल रहा है, विशेष तौर पर यहूदियों के लिए बोल रहा है, ना केवल अन्य जातियों के लिए। It is only in the Gospel of John, in the end, when Jesus is praying in the garden before his death, that he talks about bringing the Gentiles into the faith. It's only then, not before that. अब केवल जो है हम देख सकते हैं, जब यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना कर रहा था, उस स्थान पर जो है हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक जगह ही केवल देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह जो है प्रार्थना कर रहा है उस अन्य जातियों के उनके विश्वास के बारे में। So Jesus is talking to the Jewish people because he considers them already in a relationship and a spiritual level far greater than any other Gentile nation on this earth. और याद रखिए, यीशु मसीह जो है अब यहूदी लोगों को विशेष करके इन बातों को बता रहा है, उस रिश्तों के बारे में या फिर उनके बीच के जो संबंध पाया जाता है उसके बारे में। ये संबंध जो है और किसी दूसरे जो अन्य जाति पाए जाते हैं उनसे बहुत ही अच्छा था या फिर बहुत ही खास था इन लोगों के लिए। But we see that the Jewish people have not lived to the level of perfection
they were supposed to be living at. Therefore, Jesus is all the time correcting them and teaching them the right way. अब याद रखिए जो यहूदी लोग यहाँ पर पाए जाते थे, यही यहूदी लोग जो है प्रभु के साथ या फिर परमेश्वर के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं था। जितना प्रेम इन लोगों को परमेश्वर को करना चाहता था, उतना प्रेम इन लोग जो है नहीं कर पाए। इसलिए यीशु मसीह जो है इन लोगों को उस रिश्तों के बारे में बात कर रहा है। Now, chapter 5, please read verse 13. और इसी जो है 5वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 30 पद को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम कुछ बातों को देखेंगे। 13, 1, 3. 13 दाहिना 13 1, 3. 13 पद, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। Who is Jesus talking to? He's talking to the Jewish nation. अब यहाँ पर यीशु मसीह इस वचन को किसको बोल रहा है? ये जो है यहूदी राष्ट्रों के बारे में बोल रहा है। He's telling them that you are like the salt of the earth. अब ये यीशु मसीह यहूदी लोगों को बोल रहा है कि तुम जो है इस पृथ्वी के नमक हो। And what does he mean by you are the salt of the earth? और तुम इस पृथ्वी के नमक हो, इसका मतलब क्या है? Because salt is a covenant that God made with the Jewish people for a specific purpose. और याद रखिए जो नमक यहाँ पर पाया जाता है, ये जो है यहूदी लोगों के लिए विशेष एक योजना के तहत परमेश्वर की एक वाचा थी। Now I will give you a secret of something you have never ever known before in the Bible. और मैं जो है एक रहस्य के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसको आप कभी भी नहीं जान पाए हैं बाइबल में से। Every Jewish person is supposed to use salt to clean the meat that they eat with. और याद रखें जो मीट जो है यहूदी लोग थे, उन लोगों को नमक ले करके उसको जो है पूरी रीति से साफ करना होता था उन लोगों को। So every time a goat or a sheep or any animal was slaughtered for eating, that meat had to be salted through a process and made pure and made ready to eat. और याद रखें कोई भी बकरी या फिर कोई भी और भी दूसरे जानवर जिनको वो लोग जो है हत्या करते या फिर उसको काटते थे खाने के लिए, उसको जो है बिना नमक में मिलाए हुए जो है उनको खाना नहीं था। So they would pack the meat with salt completely for about half an hour, and the salt does something to the meat. और याद रखिए उन लोगों को क्या करना था, जो मीट पाया जाता है उसको जो है जो मांस पाया जाता है उसमें नमक मिला करके आधा घंटा उन लोगों को रख देना होता था, जब तक जो है वो नमक उस मांस में पूरी रीति से अपने आप को अब्सॉर्ब या फिर उसमें सोख ना ले। What does the salt do? Salt does two things. One is it sanitizes and it removes all the germs from the meat. That's what the salt does. अब जो है नमक क्या करता है, दो कार्य वहां पर नमक करता है। पहले काम कि नमक जो है उस मीट में जितने भी कीटाणु पाए जाते थे उसको जो है वो शुद्ध करता है, साफ करता है। You must have noticed your parents and your grandparents even washing your vegetables in the house in salt. आप जो है अपने पालक और उसके साथ साथ अपने दादी दादा को भी देखे होंगे कि बिना नमक के जो है वो लोग अपने घर में इस प्रकार से मांस को नहीं पकाते थे। Correct? If you'll remember this. The second thing salt does, और दूसरा कार्य जो नमक का है, it removes all the blood from the meat. वो जो मांस पाया जाता है उसमें के सारा जो खून है या फिर रक्त है उसको पूरी रीति से हटा देता है। Because according to the Bible, you're not supposed to eat meat with blood in it. क्योंकि बाइबल के अनुसार हम देख सकते हैं जब भी मांस तुम खाओ तो बाइबल बताते हैं कि उसको लहू के साथ ना पकाना। The blood of the animal is the soul of the animal. क्योंकि जो रक्त पाया जाता है वो जो है प्राण है कोई भी पशुओं का। So when you're drinking the blood or you're having the blood mixed with the meat,
you're absorbing the soul and the qualities of that animal inside of you. इसीलिए जब भी कभी तुम जो है उस रक्त के साथ में कोई भी मांस को पका करके खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो उस एनिमल का जो गुण पाया जाता है और या फिर उस पशु का जो कार्य पाया जाता है उस प्राण को जो है अपने में आप जो है सोख लेते हैं, ले लेते हैं। And that strengthens the flesh in our bodies. That is a constant spiritual fight in the kingdom of God. We cannot grow spiritually because of that. और इसलिए जो है जो मांस पाया जाता है वो आपके शरीर की बढ़ोतरी करता है, आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन आप जो है आत्मिक रीति से उस युद्ध को नहीं लड़ सकते, आप आत्मिक युद्ध से हार जाएंगे। So salt played a very specific purpose in the Jewish life. अब यहाँ पर जो नमक पाया जाता है वो जो है यहूदी लोगों के जीवन में बहुत ही विशेष या फिर महत्वपूर्ण कार्य को निभाता है। And just as salt does these two things to meat, so is the Jewish people considered like salt to cleanse and to sanctify the nations of the world. और जिस प्रकार से ये नमक जो है जो दो कार्य कर रहा है उसी प्रकार से यहूदी लोगों में जो प्राण पाई जाती है वो जो है कार्य को करता है अपने आप में खुद को शुद्ध करने के लिए। The role of the Jewish people is like salt to clean the world, the people of this world, and to sanctify them and bring them back to God. अब यहाँ पर जो यहूदी लोगों की जो भूमिका पाई जाती है, यहूदी लोगों की भूमिका जो है इस संसार में जितने भी लोग पाए जाते हैं उनके बीच में उन सब अशुद्धताओं को शुद्ध करने के लिए है। उसके साथ ही साथ जो परमेश्वर का रिश्ता जो पाया जाता है उसको लोगों के साथ जोड़ देने का कार्य उन यहूदी लोगों को नमक के समान करना चाहिए। So Jesus is reminding the Jewish people that you are the salt of the earth. If you lose the qualities of being salt, the world will not be rectified. अब यहाँ पर जो है यीशु मसीह जो है उन लोगों को इस प्रकार से बोल रहा है कि तुम जो है अब इस धरा के या फिर इस पृथ्वी के नमक हो और तुम्हें अपने आप को इस संसार को सुधारने के लिए काम में लाना चाहिए। You're all understanding this. Very, very important. Now read verse 14. और उसके बाद जो है हम जब 14 पद को इसमें पढ़ते हैं, लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। Which city is Jesus talking about? अब यहाँ पर कौन से शहर के बारे में, शहर पनाह के बारे में यीशु बोल रहा है? He's talking about the city called Jerusalem. यह जो है उस शहर के बारे में बोल रहा है जिसका नाम है यरूशलेम। Jerusalem is a city that is on a mountain. It's based on the mountain. If you have ever been to Israel, you will go to Jerusalem. It's on a mountain. अब यरूशलेम का जो शहर पनाह पाया जाता है वो जो है पहाड़ों पर बसा हुआ है। यदि आप जो है इजराइल नहीं गए हैं तो एक बार जाएंगे तो आप देख सकते हैं यरूशलेम को। And in the night, if you're on the Mediterranean Sea off the coast of Israel, you will be able to see Jerusalem and the lights of Jerusalem right from the sea, from the coast and the sea, even till today. और यदि आप जो है उस समुद्र के उसके बीच में पाए जाते हैं और जब आप किनारे में जाकर के देखते हैं तो आप जो है प्रकाश जो है उस यरूशलेम के शहर से आते हुए आप जरूर देख सकते हैं उस सी के थ्रू। Jesus is saying that the city Jerusalem is a light to this world, is the center of this world, and that light cannot be hid. He's telling the Jewish people, he says, the light that is supposed to be you cannot be hid in this world. Why are you not living according to what God has given you? अब यहाँ पर जो है जिस प्रकार से यरूशलेम जो शहर पाया जाता है वो इस संसार के लिए प्रकाश का कारण है और वो क्योंकि जो है केंद्र में पाया जाता है वो प्रकाश है। इसी प्रकार से यहूदी लोगों को यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम भी जो है उसी प्रकाश के माध्यम से हो, तो क्यों तुम दूसरे को प्रकाश नहीं दे रहे? So the Jewish people have a role in this world, a very specific task and thing to do. अब यहाँ
पर यहूदी लोगों को जो है भूमिका दिए गए हैं, उनको जो है कुछ चुनौतियाँ दिया गया है, विशेष चुनौती जिसको इस संसार पे आकर के उन लोगों को करने की ज़रूरत है। But somehow, over the years, they have lost sight of what they're supposed to do, and they have not done what God wanted them to do. Therefore, this world is still unrectified and in sin. परंतु जो है उन लोगों को जो कार्य सौंपा गया था परमेश्वर के माध्यम से, उस कार्य को वो लोग नहीं कर पाए। उन लोगों को शुद्धता के काम पे लाना चाहिए था, उस काम को भी वो लोग नहीं कर पाए। इसलिए ये संसार आज भी जो है अंधकार में पाया जाता है। That is why Jesus had to come and do that thing which the Jewish people could not do. और इसीलिए जो है यीशु मसीह को इस धरती पर आकर के वो कार्य को करना था, जिस कार्य को यहूदी लोग जो है आज तक नहीं कर पाए थे। And although he done it for them, he never forgot them. He said, I am doing it for you. Therefore, in the sight of God, even you have become righteous because of that. हालांकि जो है उस कार्य को परमेश्वर यीशु मसीह ने किया, लेकिन उनको नहीं भूला। उनको इस प्रकार से कहता है कि मैं जो है आपके लिए आया हूं ताकि तुम जो है परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी गिने जाओ। Now, if you remember, when we studied chapter 12 and chapter 11 of Genesis, we studied about Abraham and how God blessed Abraham. और जब आप जो है उत्पत्ति की किताब उसका 11 और 12 अध्याय में पढ़े हैं, तो वहां पर जो है हम देख सकते हैं कि अब्राहम को कैसे परमेश्वर ने जो है आशीष से नवाजा है। And what did he bless Abraham? That through Abraham, the nations would be grafted in to you. और अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे आशीष दिया कि अब्राहम के माध्यम से जो राष्ट्र पाए जाते हैं वो भी आशीषित हो जाएं। So the merit of Abraham had to come to the Jewish people, and through the Jewish people, like salt on this earth, the nations would be able to come back and rectify and change their life back to God. But it never happened. So और Jesus had to come and do it for them. और अब्राहम के माध्यम से जो उसके जीवन में गुण या फिर सदाचार पाया जाता था, उसके जीवन का सदाचार और गुण ये यहूदी लोगों के जीवन में आना था। और यहूदी लोगों के जो जीवन में था, वो जो है परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता अच्छा होना चाहिए और लोगों के साथ भी वो लोग जो है जा करके इस धरती में लोगों को सुधारने का काम करने पाए, लेकिन आज तक वो काम जो है हो नहीं पाया है। So after the Gospels, after the death and resurrection of our Lord Jesus, now Jesus is able to bring you and me and the Gentiles into the promise and covenant and relationship back to God. और याद रखें, सुसमाचार के बाद या फिर प्रभु यीशु मसीह के मारे गए, गाड़े गए और पुनरुत्थान होने के बाद जो है आपको और जो अन्य जाति लोग पाए जाते हैं, उनको और यहूदी लोगों को भी जो है अब प्रभु एक साथ ला दिया है। Now, what happened was, because the Jewish people had sinned, they became like the nations, and the nations who became righteous, they became spiritual Jews. अब याद रखिए, यीशु मसीह की इस धरती पर आने से क्या हुआ, जो भी यहूदी राष्ट्रीय लोग पाए जाते थे, वो लोग जो है धर्मी बन गए और उनका जो रिश्ता पाया जाता था, वो रिश्ता भी परमेश्वर के साथ जो है जुड़ गया है। So therefore, Paul says that everybody has sinned. Jew and Gentile both have sinned in the sight of God. अब इसीलिए जो है पौलुस कहता है कि यहूदी या फिर अन्य जाति लोग हैं, सब ने जो है पाप किया है। Therefore, both Jew and Gentile have to come back to God only through Jesus Christ. और इसलिए जो है केवल यीशु मसीह के माध्यम से यहूदी लोग और अन्य जाति लोग जो है प्रभु में आ सकते हैं, वो यीशु मसीह के कारण ही होगा। This is Jacob and Esau I was talking about, both together coming back as one person in the sight of God. और इसके बारे में मैं जो है आपको बता रहा था, इसी दो लोगों के बारे में, याकूब और एसाव के बारे में, कि इनके माध्यम से जो है लोग जो है आएंगे प्रभु में। So friends, I'm not going to continue anymore because this is enough. I've given you all almost 3,000 years of history in 1 hour. और मैंने जो है अब आगे और भी इसको बढ़ाऊंगा नहीं, हम यहाँ पर जो है समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने जो है 3000 साल के उस इतिहास को जो है केवल 1 घंटे में ही आपको प्रदान किया है।
And I've made you all understand in very simple language how important it is to read the New Testament on the foundation of the Old Testament. और मैंने जो है बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने में प्रस्तुत किया है कि कैसे आप नए नियम को जो है उस पुराने नियम के उस परिच्छेद में लेकर के पढ़ सकते हैं। So the New Testament cannot be read or understood without full knowledge of the Old Testament. और इसीलिए जो जो नया नियम का किताब पाया जाता है, बिना पुराने नियम के उस समझ से आप जो है नए नियम को पढ़ नहीं पाएंगे। In fact, the New Testament has no foundation if there is no Old Testament. हाँ, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो नया नियम है, बिना पुराने नियम के उसका नींव नहीं होगा। And when you keep studying with me as we progress and we go further and further into the scriptures, you all will realize that there is no difference between the Old and the New Testament. Nothing has changed. और यदि आप जो है इस अध्ययन में लगातार मेरे साथ में बने रहेंगे और भी आगे हम जो है अध्ययन में बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि नया नियम और पुराने नियम में कोई भी अंतर या फिर भिन्नता नहीं पाई जाती है। So friends, I hope you all are blessed and I hope you all have absorbed and taken what we have learned today. It's very, very important to learn these things as a foundation in our faith. और दोस्तों मुझे ऐसा विश्वास है मुझे और आशा है कि आप जो है इस बातों को सीख गए हैं, समझ गए हैं, इसको जो है अपने में धारण कर लिए हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। And I'm going to meet you all next Wednesday again and I'm going to send you all another recording. In the meantime, if there's anything you want to ask, please write to us, please contact us. We will definitely be able to reach out to you and to answer all your questions and queries. और आने वाले बुधवार में जो है हम इसी समय पे आपसे मुलाकात करेंगे। यदि इस बीच में आपको कुछ भी हमसे पूछना है या फिर जानकारी चाहना है तो आप जो है हमें लिख सकते हैं या फिर उसके साथ साथ हमें बता सकते हैं। यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए हम आपको प्रदान करेंगे। So good night and have a wonderful week and hope to see you all next time. God bless. In the name of Yeshua, God bless. और जो है अच्छा एक बहुत ही सुनहरा जो है सप्ताह आपको परमेश्वर प्रदान करे। सबको प्रेज द लॉर्ड। Shalom and good night. हम फिर से मुलाकात करेंगे। सबको शांति मिले।